بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت مصحابہ تمام محمد باقر علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسرے ماہ رجب کی بھی مبارکباد اس لیے کہ یہ ماہ رجب جو ہے وہ حرمت و فضیلت میں پروردگار عالم کے نا اس سے بڑھ کر کے مہینہ ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ رجب تو کہتے ہیں رجب کے بہت سارے معنی. رجب کے ایک معنی تو یہی ہے کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جس نہر سے جو دودھ جاری ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس نہر سے وہی انسان سیراب ہوگا کہ جو ماہ رجب میں کم سے کم ایک روزہ رکھے گا. ماہ رجب میں کم سے کم جو ایک روزہ رکھے گا وہ اس نہر سے سیراب ہوگا. اور جنت میں ایک محل کا نام بھی ہے. رجب جو ہے وہ جنت میں ایک محل کا نام بھی ہے اور وہ عظیم محل ہے کہ اس محل میں وہی صرف انسان داخل ہوگا کہ جس نے ماہ رجب میں روزے رکھے. یہ ماہ رجب کے اور ماہ رجب کا ایک معنی ہے عصب. عصب کہتے ہیں اڈیلنے کو. عصب یعنی اڈیلنا. تو یہ عصب اس ماہ رجب کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ رجب میں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو بندوں کے اوپر اڈیلتے ہیں. یعنی یہ ایسی زیادہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے کہ واقعی پروردگار عالم کی اس مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کس طریقے سے تمہیں رحمت پروردگار کو طلب کرنا ہے تو اس مہینے میں جو سب سے خاص عمل ہے کہ جو انسان کو پورے ماہ رجب میں پڑھنا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. زیادہ سے زیادہ استغفار کرے پروردگار عالم کی رحمتوں کی اس پر بارش ہوگی. یہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے اور اول رجب کو تمام فرشتگان الہی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پروردگار عالم کی یہ آواز آتی ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے مقرب فرشتوں، آج جو کچھ بھی تم مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا. آج یعنی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو میں اسے جو ہے وہ قبول کر لوں گا. تو تمام کے تمام فرشتگان الہی یہی کہتے ہیں کہ پروردگارہ بس ہماری تجھ سے ایک ہی دعا ہے کہ اس انسان کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے جو اس ماہ رجب میں روزے رکھے گا. یعنی جو اس ماہ رجب میں روزے رکھے گا اس کے اوپر تو جہنم کو حرام قرار دے دے. تو پروردگار عالم ظاہر سی بات ہے کہ جب خود اس نے آواز دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں آج تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو روزہ رکھے گا. اور دوسری روایتوں میں یہاں تک آیا پیغمبر اسلام سے کہ جو اس ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم جہنم کو اس سے 1 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے.
यानी 1 साल की मसाफत होती है, उतना जहन्नम जो है उससे दूर कर देता है। और बाद रिवायतों में ये आया है कि इतना ज्यादा सवाब है इस महीने में रोजा रखने का कि जिसके वाकई कोई बयान नहीं कर सकता कि इस महीने में कम से कम इंसान जो है, या तो खास जो वक्त बताया गया है वो जुमेरात है, जुमा है और हफ्ते का रोज है। ये 3 रोज कम से कम जो है वो इंसान जो है वो इस माह रजब में रोजे रखे। एक सलवात और इस महीने में यानी पहली जो शबे जुमा है जिसको लैलतुल रगाइब कहा जाता है, जिसकी बड़ी फजीलत है, पैगंबर इस्लाम से भी और खुद जनाब सलमान फारसी से भी आज की शब जो है वो कुछ नमाजें हैं 10 रकात तकरीबन, उसे जो है 10 या 12 रकात है, वो उसे 2-2 रकात करके जो है वो अदा करना है। वो किताबों में जो है वो तरीका मिल जाएगा। अगर कोई शख्स इन नमाज को यानी अदा करता है आज के शब, वैसे तो ये मगरिब व इशा के दरमियान पढ़ना अगर नहीं पढ़ा है तो वाकई बाद में भी पढ़ सकता है। आज के रात को रगाइब कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स उस नमाज को अदा करता है तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो कब्र में, जाहिर सी बात है कि कब्र की पहली रात जो है वो वहशतनाक होती है, अंधेरी रात होती है, तो लिहाजा वो मरने वाला जिसने पढ़ा होगा आज की रात उस नमाज को, तो जब वो देखेगा कि कब्र में अचानक उसके एक नूर दाखिल हुआ है, एक नूर दाखिल हुआ है जिससे उसके कब्र जो है वो मुनव्वर हो गई है। एक मतलब पूछेगा कि आखिर तू कौन है कि जहाँ जो यहाँ तारीकी थी और तेरे आने की वजह से मेरी पूरे कब्र जो है वो नूर से मुनव्वर हो गई है। एक मर्तबा हुक्म खुदा वो आवाज देगा कि मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वही तुम्हारी नमाज हूँ कि एक सलवात दिखावे की तौर हम दिल से पढ़ा वो मैं वही तुम्हारी नमाज हूँ। यानी इस नमाज का इतना ज्यादा सवाब है, नमाज का, रोजे का। और अच्छा ये भी ऊपर से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, देखिए वाजिब रोजे की तो कज़ा है, या वाजिब रोजा अगर कोई इंसान नहीं रख सकता तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ शरायत है कि उसकी जानबूझकर कुछ छोड़ना वो अलग है, तो जानबूझकर अगर छोड़ा है तो वो 3 चीज़ें करना होगा, तो गुलाम को आज़ाद भी करना होगा, फिर जो है वो 150 रोजे भी पर उसको रखने होंगे। लेकिन इसमें पैगंबर इस्लाम से जब इतने फजाइल को बयान फरमाए हैं तो रावी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई बीमारी की वजह से माह रजब के रोजे ना रख सकता हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी मजबूरी की वजह से अगर वो रोजे ना रख सकता हो तो वो क्या करेगा? वो इस सवाब को कैसे पाएगा जो आपने इतना ज्यादा सवाब बयान फरमाया है? फिर तो वो इस सवाब से महरूम रह जाएगा। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि नहीं, वो महरूम नहीं होगा, बल्कि जो मजबूरी या मरज की वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से अगर वो रजब के रोजे नहीं रख सकता है तो वो हर रोज जो है वो सदका दे। रोटी जो है, ये रोटी लफ्ज है, बाकी उसके अलावा जो है वो कोई भी चीज जो है वो सदका दे सकता है, उसके अलावा जो है वो सदका दे। तो जितने भी मैंने सवाब बयान फरमाए हैं वो तमाम के तमाम सवाब का हकदार वो भी होगा, यानी वो तमाम के तमाम सवाब उसे भी मिलेंगे। फिर उसके बाद पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, खुदा की कसम जो उसे सवाब मिलेगा, यानी इस माह रजब में चाहे वो मरज की वजह से ना भी रख पा रहा हो, वो सदका दे रहा हो, और जो रख रहा हो जो सही है, उसे इतना सवाब मिलेगा कि अगर तमाम जमीनों आसमान की मखलूक इकट्ठा होकर के उस सवाब को हासिल करना चाहे तो उस सवाब के 10वें हिस्से को भी हासिल नहीं कर सकेगी। यानी इतना ज्यादा सवाब है कि अगर तमाम जमीनों आसमान की मखलूक जो है वो उस सवाब को हासिल करना चाहे, बगैर रोजा रखे हुए भी हासिल करना चाहे, तो उस सवाब के 10वें हिस्से को भी हासिल नहीं कर सकते।
क्या कहने वाला। जो परवरदिगारे आलम उसे जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, जो उसे फजीलत अता फरमाएगा, वो जो है उसके अलावा कोई हासिल नहीं कर सकता। वही उन फजीलतों को पाएगा कि जिसने माह रजब में रोजे रखे हों। एक सलवात पढ़े तो ये माह रजब जो है वो रहमतों का महीना है वाकया। इसीलिए जो माह रजब की दुआ है उसमें एक जुमला ये भी है ना कि हर्रिम शहबती अलन नार, के परवरदिगारा मेरी दाढ़ी के ऊपर जो है वो जहन्नम की आग को हराम करा दी। असल तो मुराद ये नहीं है कि दाढ़ी के ऊपर बनना, ये तो औरतों के लिए दुआ ही ना होती। असल मुराद उससे ये है कि इंसान जो है वो परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपनी आजिज़ी का इकरार करे, यानी अपनी आजिज़ी का कि परवरदिगारा मैं जो हूँ फ़कीर अब्दे मिस्कीन हूँ तेरे सामने, यानी अपनी आजिज़ी का इनकार करता है। और इस तरीके से जब ये जुमला कहता है तो परवरदिगारे आलम की आवाज़ आती है कि मेरे बंदे मैंने तुझे आतिश जहन्नम से निजात अता की। ये माह रजब का इतना वाक़या और सबसे ख़ास जो अमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में जो है वो इंसान इस्तिग़फ़ार करे। और क्यों ना हो ये माह रजब का महीना इसलिए कि कई मासूमों की आमद है इस महीने में, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये इसी महीने के अंदर खुद मौलाए कायनात और खुद पहले रजब को, जैसा कि आज जो है वो 5वें इमाम की भी विलादत बासआदत है, तो लिहाजा ये 5वें इमाम और ये पूरा का पूरा महीना ही बाबरकत महीना है। और इन मौलूद के सदक़े में परवरदिगारे आलम अपने बंदों के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमा रहा है। और आज पहली रजब है तो जाहिर है कि 5वें इमाम के दो चार बातें, फिर उसके बाद ख़त्म महफिल कि ये 5वें इमाम के वाक़े के जिनको बाक़िरुल उलूम कहा जाता है। और ये 5वें उलूम जैसा कि मैंने कहा कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले ज़िक्र से सवाल करो कि अगर तुम नहीं जानते हो। जाहिर सी बात है कि खुद ये 5वें इमाम है कि जिनका लक़ब ही बाक़िरुल उलूम है, यानी इल्म को फैलाने वाला, इल्म को शगाफ करने वाला। जिस तरीके से इंसान जो है वो ज़मीन के अंदर दाने को डालता है तो दाना ज़मीन को शगाफ करके बाहर आता है, उसी तरीके से इमाम ने भी इल्म को शगाफ किया है और इल्म को दूसरों तक फैलाया है। तो यही 5वें इमाम है कि जब शाम से वापस आ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जब शाम से वापस आ रहे थे तो 5वें इमाम है और उनका गुजर हुआ एक ऐसी जगह से जहाँ के ऊपर एक राहिब यानी ईसाई आलिम दीन तो उसका जो है वो इबादत खाना था, एक पहाड़ के ऊपर, एक बुलंदी के ऊपर, और बहुत सारे लोग वहाँ के ऊपर इकट्ठा थे। जब इमाम ने उस मजमे को देखा है, अच्छा उधर से भेजा गया है कि खबरदार जो है वो इनको कोई मेहमान भी ना रखे, और अगर ये कुछ खरीदना भी चाहे तो इन्हें कुछ देना ही नहीं, यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर पाबंदी है। और शाम से इनको जो है वो भेज दिया गया मदीने के लिए और इमाम जो है वो जा रहे हैं। लेकिन वाक़ईन जाहिर सी बात है कि अल्लाह जिसका ऐलान करना चाहे तो फिर उसे कौन रोक सकता है। लिहाजा इमाम ने जब मजमे को देखा है तो इमाम भी जा करके उस मजमे में बैठ गए। अब वो राहिब निकला है, ईसाई आलिम दीन निकला है, तो उसने क्या देखा कि एक मरतबा मजमे के ऊपर नज़र दौड़ाई और नज़र दौड़ाने के बाद उसकी नज़र जो है वो इमाम के चेहरे के ऊपर टिक गई। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए वो भी जो ईसाई आलिम दीन था, इसका मतलब कि उसके अंदर भी कुछ था, यानी इतनी पहचान तो थी कि सारा का सारा ये मजमा और है, ये एक चेहरा और, यानी सारे का सारे तो ये अलग है मगर ये जो है वो और है। तो लिहाजा फौरन उसने पूछा कि क्या आप आलिम हैं या जाहिल हैं। तो अब देखिए इमाम ने भी वाक़ईन क्या जुमला सही है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, यानी इमाम का जो कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। इमाम ने ये कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ। बाकी कोई और ये होता तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो मैं कह देता कि मैं आलिम हूँ, लेकिन इमाम ने ये कहा कि मैं जाहिल नहीं हूँ। अच्छा अगर ये आलिम कह देते हैं कि मैं आलिम हूँ तो जाहिर सी बात है कि देखिए इल्म जो होता है वो एक महदूद होता है। इल्म की जो हद होती है ना, इल्म की हद होती है जहालत,
इल्म की आखिरी हद का नाम जो होता है वो जहालत होता है। मिसाल के ऊपर चाहे वो इंटर का लड़का हो या बीए का लड़का हो या एमए का लड़का हो, यानी अगर इंटर का भी लड़का है तो जाहिर सी बात है कि बीए उसके लिए जहल है भाई। अब उसको इंटर ही के बारे में पूछिए, बीए के बारे में उससे ग्रेजुएशन के बारे में ना पूछिए, इसलिए कि ये उसके लिए जहल है। यानी इल्म की आखिरी हद का नाम होता है जहल। और इमाम ने क्या फरमाया कि मैं जाहिल नहीं हूँ, यानी इमाम ने उस आखिरी हद का इनकार कर दिया कि हमारे पास सिर्फ इल्म ही इल्म है, जहल की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे पास जो है वो सिर्फ इल्म ही इल्म है, जहल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उसने जब सुना है तो जाहिर है कि उसने बहुत सारे जो है वो इमाम से सवालात किए हैं और इमाम ने उसके सारे के सारे जवाबात अता फरमाए हैं। जब जाहिर सी बात है कि वो आता था साल में एक दफ़ा इसीलिए ताकि लोगों के सवालों के जवाब दे सके, लोगों के सवालों के जवाब दे सके। तो जैसे ही उसने इमाम से सवाल किए हैं तो इमाम ने सारे के सारे उसके सवालों के जवाब दे दिए। 12 आपने सुना है। तब एक मर्तबा जब उसने इमाम के से जवाब सुना है तो एक मर्तबा उसने अपने तमाम चाहने वालों से कहा कि जब तक ये इंसान शाम की हुदूद में रहे कोई भी मुझसे सवाल न करे, बस से जिसे भी सवाल करना हो वो इससे जाकर के सवाल करे। यानी जब तक ये शाम के हुदूद में है मुझसे कोई सवाल न करे बल्कि इससे सवाल करे। ये पांचवें इमाम है कि वाकई हमारे जितने भी इमाम मासूमीन है जाहिर है कि वो इल्म लदुन्नी के मालिक होते हैं, यानी जो भी इल्म परवरदिगार है कि खुद पांचवें ही इमाम ने फरमाया है ना कि परवरदिगार आलम की जो इल्म है, यानी 73 अस्मा में से परवरदिगार आलम ने 72 अस्मा का इल्म हमें अता फरमाया है और एक अस्मा का इल्म जो है वो अपने पास रखा है ताकि अब्दो माबूद के दरमियान फर्क बरकरार रहे कि मैं माबूद हूँ और ये मेरे बंदे हैं। आइए इसी के साथ हम खुदा से दुआ करें कि खुदा के मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जहाँ की शान हज़रत कर रहा हूँ उनकी जान माल तो उनकी हिफाजत फरमाए। मोहम्मद वाले इस मौलूद के सदक़े में जितने भी यहाँ मोमिन तशरीफ़ फरमा है उन तमाम मोमिनीन की दिली जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। इस मौलूद के सदक़े में जो बीमार हो खातों से सरताज भाई और जो जहाँ भी बीमार फियाने अदर कर रहा परवरदिगार आलम उन्हें शिफाई कामिल और जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम परचम इस्लाम को सर को सर फरमाए। सबसे खास दुआ ये है कि इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील अता फरमाए, सबको उनके आवान व अंसार में मशहूर फरमाए। आप अल्लाह से गुजारिश है कि